So let's start the class. So we were discussing, we have started the topic syntax data translation, and we have studied about what is syntax data translation. Later, we have seen about what is syntax data translation. Then we have studied about what are the different applications of syntax data translation. Then we have seen what are the different applications. Along with that, we have also solved few numericals as well in the syntax translated translation, that some input string is given, some arithmetic expression is given to us, then how to solve that particular arithmetic expression. Then we have seen how to pass the syntax directed translation. Also, we have seen that part as well. For that, we have seen that there are two types of passing methodologies. One is top-down passer, second one was bottom-up passer. So one by one, we have seen that also. Firstly, we have seen the top-down passer. In top-down passer, we have seen that we are bound to add, when we are expanding the parse tree, then we have to add the parsing action along with that expansion of production rule. Later, we have seen the bottom-up parser. Bottom-up parser was very much different from the top-down parser technique. Here we have used the concept of reduction, and I have told you that in the future questions also you have to use this methodology only, because we are aware about it. Because we, in the last unit third module, we have studied about bottom-up parsing, and we know what is reduction, what is handle, what is production, and we are all aware about everything. So also in top-down parsing, what we have seen that there it becomes, the parse tree becomes complex, because unnecessarily you have to write the parsing action, one extra node for the parsing action. So it makes your parse tree look more complex. So there is no need to make it complex. So it is better to use bottom-up parsing. Okay. So I think I have not discussed this bottom-up parsing in the class. Yes or no, students? Because I have not written anything here. I Sir, have we not have discussed this, discussed but top down, but not bottom up. not bottom up. Yes, yes, yes. That is why nothing is written over here. Okay, that is good. So, students, I want to tell you one thing about this bottom up passing, that if some we have to perform some kind of this SDT passing, then there are two methods. Okay. So please firstly make sure that you are writing, just a minute. So we have seen this question. God. So first of all, you do what you please write this question somewhere in your copy. Okay, this question, how to pass this SDT, this particular question, this thing. Write it somewhere in your copy, because I have to change page, so it becomes difficult for me to teach. Everybody, please write this question, this complete question. Write it somewhere in your copy. Please, I'm giving you 1 minute time, or just copy it somewhere. Um, have you written on? Everybody written? Yes, sir. Okay, very good. No, no, sir. Just a So, minute. okay. Right now, what I can see, Shraddha, Tushar, Pedredla, Ritik, Nirupma are absent. Please call these stipulated just a bit. I will call myself.
Written? Yes, sir. Written. Okay, so this is the question. You have to pass the SDT. We have seen to pass this thing using top-down passing. In top-down passing, we all have seen. Let me change this page. This thing we have seen. Now we will see this part. Okay. Okay. So this bottom-up passing, the same thing is there. Whenever some question is given to you, some arithmetic expression is given to you. First of all, the first step is always you have to draw the pass tree. Okay, or the first step is always same. You have to draw the pass tree. But this time, unlike top-down passing, there is no need to write the rules. Earlier, what we were doing like this. S को expand किया A और साथ में क्या किया यहाँ पे passing action किया. Now there is no need to do like this. Simply expand. What was our input string? Our input string was A, D, B, C, and output is being asked to us. Okay, so what to do? We have expanded this pass tree. We have generated this pass tree with the intention to generate this input string. Okay, so firstly, what we have done, S tends to AS, then A will expand, A will use the production of A tends to A, and we will get A. Similarly, then we have to expand this S in the with the intention that we also want the second A as well. So this time we will use the second production. S tends to AB. You will get A here, B here. So same again you can use A tends to A to get a small a. So this A also you got, this A you also got. Now you got B, capital B over here. There are two productions from B. B tends to BC and B tends to DB. So you want D now. So which production you will be using? B tends to DB, or it is obvious. So DB you have used, so you get this D as well. Now you get this B. You have to expand this B with the intention to get a small b. So straight away there is one production, B tends to BC. So you have used that production, B tends to BC. And finally you get B as well. So finally you want this C. So can you get this C from capital C? Yes, from the last production. C tends to C. So you can get. So this is very easy to generate the pass tree. So you have generated the pass tree. But remember one thing, you have to always use the concept of bottom-up passing when you are solving SDT problems, because as I told you, this bottom-up passing, I will not say it is easy, but we are aware, we have done a lot of problems on bottom-up passing. We are aware about this concept, and we are very new to the concept of top-down passing in terms of SDT. But if we talk about bottom-up passing, it is not new because all the things we are doing same. Pass tree is generated. Only thing which what extra we have to do, we have to pass this. We have to pass this. Just a minute. We have to pass this. Yes, pass tree. Okay, so we have to scan this pass tree from left to right. So what is the process? I told you the same manner. We will go from here like this. Go from here. And it works on the reduction concept. Remember this, student. It works on the reduction concept. Second point, as terminals gets reduced, the actions are performed. ओके, जैसे जैसे आपको सब स्ट्रिंग मिलता जाएगा, आप रिडक्शन करते जाओगे, एक्शंस परफॉर्म होते जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हैपनिंग, व्हेन यू जस्ट स्कैन कर रहे थे, यहाँ से यहाँ पहुंचे तो क्या हुआ, स्मॉल a is reduced to capital A. Small a is reduced to capital A. Which production is this? This is third production. So what action is you are required to perform? Printf 3. Sir, print So 3. yes, correct. Just a minute. Yes, now print 3 is done. Now again just keep moving. अब आपको जब मैं यहाँ पहुंचे तो आप कहेंगे सर देखिए A तो हमको मिल गया, S भी हमको मिल गया, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते. अभी हमने S को पास किया है. जब हम S यहाँ से होंगे, जब बॉटम अप जा रहे होंगे, तब हम उसको, इसीलिए तो इसको बॉटम अप कहते हैं. अभी तो आप नीचे जा रहे हो, टॉप डाउन जा रहे हो, अभी आपने उसको पास नहीं किया, अभी आपने उसको जस्ट पास किया, अभी आप उसको रिड्यूस नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो यू विल गो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. अगेन व्हाट यू फाउंड, this A tends to A. Which production? Third production. Which what to print? 3. Done. This is also done. Then again what you have to do, you have to check, keep scanning. Again B tends to B. Is there any production? B tends to B? No. B tends to, again, is there any production B tends to B? No.
Yes, C tends to C. Is there any production? Yes, there is one production. C tends to C. What to print? 6. Printf 6. Then what to do? You are coming here. What you can see, B and C are reduced to capital B. B and C are reduced to capital B. So BC are reduced to capital B. So what to do? Fourth production, printf 4. Now what to do? You tell. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? DB is reduced to capital B. Which action? 5. 5. 5. This is also done. तो बहुत आसान है, आप सब लोग कर लोगे इसको. फिर यहाँ पे बताइए अब क्या होगा? S tends to AB हो गया. AB reduced to S. बिल्कुल सही. अब यहाँ पे आ गया, ये क्या हो गया? 1. AS reduced to हो S. गया. बस देखिए आ गया आंसर आपका. सर बस वो A डॉट बॉटम अप ट्री बनाते वक्त नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ना कि यस, नीचे से. हाँ बिल्कुल. जब इसको आप पास कर रहे होगे, जैसे ये आपका है, ये आपका A है, ये आपका AB है, ये आपका फिर से A है, ये आपका DB है. इस तरह से जब बनेगा पास ट्री, तो याद करिए जब आप स्कैनिंग करोगे, तो स्कैनिंग हमेशा ऐसे करोगे. ठीक है. और स्कैनिंग कहाँ पे स्कैनिंग करोगे? आपको ये देखना है कि रिडक्शन कहाँ होता है. जैसे यहाँ पर आए, जैसे ही यहाँ पर है, तो आप जब देखा स्मॉल, जब इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो जब आपने क्या देखा, स्मॉल a इज रिड्यूस टू कैपिटल A, ये एक रिडक्शन हो रहा है. नाउ अब A टेंड्स टू A वाला जो प्रोडक्शन रूल है, उसका एक्शन क्या है, उसका सिमेंटिक रूल क्या है? printf 3. तो ये करना है. अब जैसे यहाँ पे जब जाओगे, तो ये मत सोचना कि सर A और S को, नहीं, ये आपने इसको जस्ट अभी पास किया, आपने इसको रिड्यूस नहीं किया है. ठीक है. आप तो अभी इसकी स्कैनिंग कर रहे हो, रिडक्शन नहीं कर रहे हो. इसका मतलब समझते हो? ये जस्ट पासिंग. जब आप बॉटम अप जाओगे तभी आपको कुछ मिलेगा. अब देखो यहाँ गया तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे चलते समय आपको कुछ नहीं मिलेगा, नीचे चलते समय. दैट इज व्हाई इट इज बॉटम अप पासिंग. यहाँ जाओगे तब आपको कुछ मिलेगा. ठीक है. तो ये सब चीजें हैं. अभी सवाल वगैरह देंगे आप लोगों को तो और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट. ठीक है. क्लियर है सब लोगों का? नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच किया जाए. एक सवाल चलिए और देखते हैं. हाँ है सवाल हमारे पास. Everybody please write this question somewhere because I will change the page once again. Please everybody. Next question is how to evaluate the arithmetic expression using SDT. We have to finish this topic in this class only because this is last class for SDT. It's a very small topic. Limited question comes in your exam and the question are always fixed. This type of question only is going to be asked. One input string will be there. That input string is actually an arithmetic expression. You have to solve that arithmetic expression by drawing the pass tree. Always remember, always use, if in the question it is specifically written over there that you have to use top down passing, in that, for that case I have explained you, but it will not be written over there. Simply the question will be given to you. You have to solve this particular arithmetic expression using SDT. If they have specifically mentioned top down parsing, तब तो parsing action वाला next आपको नोट बनाना पड़ेगा. Otherwise always use bottom up parsing. Bottom up parsing is the best method. ठीक है. तो I hope आप लोगों ने question लिख लिया होगा. Should I change the page? Sir, just a minute. Okay. देखिए, should I? It is required to explain this SDT or do you get it? E tends to E. देखिए, this is the grammar which is given to you. This is a grammar and these are what? These are the semantic rules. And this is what? This is the input string. So you can see E tends to E ampersand T. So what does this mean? The attribute value of E is what? Is multiplied with the attribute value of T, and that multiplied value is stored into the attribute value of E. I hope this point is clear. This is what I have explained in the last class. And कहाँ चला गया? Whenever I just paste some PDF or PPT in OneNote, then only always this thing happens. आप सबने लिख लिया this question? Yes, sir. Last line लिखते हैं input. हाँ लिख लो, सब लोग लिखो. Then second production you can see E tends to T is what? That the attribute value of T is stored into the attribute value of E. ठीक है. अब यहाँ पे अब आप लोग देखिए एक चीज समझिए. यहाँ पे क्या एम्परसैंड का मतलब क्या है? स्टार. मल्टीप्लिकेशन yes, स्टार. और एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है? माइनस. बिल्कुल, सब्ट्रैक्शन. ओके. रेस्ट इज क्लियर, दिस इज नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो अब देखिए, अब पेज को चेंज करते हैं. अब आ जाइए हमारे पास ट्री पे.
ओहो, सबको दिखाई दे रहा है सब कुछ? यस यस सर। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन यू कैन सी फर्स्टली मैंने आपको क्या बताया, दिस थिंग इज गिवन टू यू, जस्ट लेट मी यूज पेन, दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग, व्हाट इज द इनपुट स्ट्रिंग, 4 ampersand 8 at the rate of 5 ampersand, so excuse me, sorry, at the rate of 3. ठीक है, ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग है. इट इज एक्चुअली अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, सो यू हैव टू सॉल्व दिस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. क्यों अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर एट द रेट ऑफ क्या है, यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है एक्चुअल में, और ये एम्परसेंड क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, अगर आप लोगों को देखिए सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को डायरेक्टली, तो आंसर क्या आएगा, क्या इसका आंसर आएगा. अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर मल्टीप्लीकेशन है तो वी विल यूज बोर्ड मास, ऐसे जो स्टूडेंट कहेंगे वो क्या होंगे, वो गलत हो जाएंगे. ऐसा आपको नहीं बोलना है. क्यों ऐसा नहीं बोलना है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द फ्लो ऑफ दिस ग्रामर. ई टेंड्स टू टी, टी टेंड्स टू एफ, एफ टेंड्स टू नम. फ्लो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा नीचे। नीचे जब जा रहा होता है तो नीचे वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है कि नहीं होती है, याद आया? सर। यस Yes, सर। sir. ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर, यस. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ई इज generating T, T is generating F, F is generating num. So flow of the grammar is what? अभी मैं SDT की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग अपनी नॉलेज से, अपनी बॉटम अप पार्सिंग से ही सॉल्व करते हैं, जो हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर से पढ़ा था. तो ये आपको समझ में आ रहा है, ई ने किसको टी को जनरेट कर रहा है, टी किसको जनरेट कर रहा है, एफ को जनरेट कर रहा है, एफ किसको जनरेट कर रहा है, नम को जनरेट कर रहा है. तो ये आपको समझ में आ रहा है कि द फ्लो ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रामर इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? यस यस ठीक है, Yes, sir. ये तो क्लियर है. तो अब Yes, sir. जब, हाँ वेरी गुड. तो इसका मतलब ये होता है कि जो जब नीचे जाओ, जब अगर फ्लो नीचे जा रहा है मतलब बॉटम डायरेक्शन में, तो जो नीचे वाले जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है. तो नीचे दो ही हमारे पास ऑपरेटर है. जब हम ऐसे नीचे जा रहे हैं ये प्रायोरिटी, तो जो पहले जो बाद में क्या मिला, जो नीचे वाले हैं ये, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी इसकी वाली से. ठीक है, तो एट द रेट ऑफ इज हैविंग हायर प्रायोरिटी देन दिस. ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये क्लियर होगा तुम लोगों को पॉइंट? यस सर ठीक है, तो फिर इसको जरा लिखो एक बार, फिर से लिखो. अब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. तो माइनस ये होता है, माइनस ये होता है, माइनस, तो कर दो इसको सॉल्व, पहले कर दो इसको और इसको. तो क्या बन जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. अब ये क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 48 आंसर आ जाएगा. इसका आंसर 48 है, बिल्कुल सही आंसर है. तो मतलब वी कैन आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग टॉप बॉटम अप पार्सिंग, देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट यूजिंग एसडीटी. इस तरह से आप अपने आंसर को क्रॉस मैच कर सकते हो. ठीक है, बॉटम अप पार्सिंग. क्वेश्चन में अगर ऐसे ग्रामर रूल्स दिए हुए हैं तो हम उसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि वो flow- जस्ट मिनट लेट मी, बेटा वॉल्यूम इतना टाइट, बहुत ज्यादा तेज आ रहा है मेरे कान में, 2 सेकंड रुको. अब बोलो, अब बोलो, सर वो मैं बोल रहा था बोलो. कभी कभी क्वेश्चन में अगर ग्रामर रूल ऐसे दिए होते कि वो फ्लो डायरेक्ट बन नहीं रहा होता, तो ऐसे अरेंज रीअरेंज कर सकते हैं ग्रामर रूल्स को कि फ्लो बन जाए ऊपर से. बिल्कुल, हमको यस आपको फ्लो तो निकालना होगा, तभी तो आप कर पाओगे. फ्लो तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा. 95% ग्रामर्स में आपको फ्लो टॉप टू बॉटम होता है, 95% ग्रामर्स में. 5% केस में आपको फ्लो ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, यस सर. हाँ. तो दिस इज अ वन वे ऑफ क्रॉस मैचिंग योर आंसर. अब चलिए आ जाते हैं वापस बॉटम अप पासिंग से सवाल को सॉल्व करने के लिए. तो तरीका, टेक्निक हमारे पास क्या है, एज यूजुअल जनरेट पार्स ट्री. ठीक है, मैंने यहाँ पे पार्स ट्री ऑलरेडी आपके सामने बना के रखा हुआ है. कोई क्यों बना के रखा हुआ, देखिए आपको जो एक्सपेंशन का याद रखिए स्टूडेंट्स, जब आपको इस पार्स ट्री को जनरेट करना है, और इसको किस विद व्हाट इंटेंशन, विद द इंटेंशन टू जनरेट दिस इनपुट स्ट्रिंग. ठीक है, दिस इनपुट स्ट्रिंग इज फर्स्टली हैविंग एम्परसेंड. तो याद रखिए हमेशा कैसे हमको जनरेट करना है, तो वो अब उस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं कि जनरेट पास ट्री कैसे करना है. ठीक है, तो पास ट्री मान लीजिए हमने ये पूरा बना दिया है.
अब हम करेंगे सीधे बॉटम अप पासिंग, ठीक है, जस्ट लेट मी चेंज द कलर, यस। अब हम करेंगे सीधे बॉटम अप पासिंग। यहाँ पे देखिए कैसे होती है बॉटम अप पासिंग। मैंने आपको क्या बताया था, रिडक्शंस ढूंढने हैं और स्कैनिंग करनी लेफ्ट टू राइट। चलिए ढूंढते हैं क्या कोई रिडक्शन हो रहा है। अभी तो टॉप टू बॉटम चल रहा है, तो कोई रिडक्शन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, हमको यहाँ से 4 नंबर मिल गया था, नम में आपका 4, नम में आपका 4 है, तो यहाँ पे जब गया नम जो है उसमें 4 वैल्यू स्टोर्ड है, तो ये क्या हुआ, f टेंड्स टू नम। हमारे पास एक प्रोडक्शन है f टेंड्स टू नम, मतलब जो नम की वैल्यू है वो f में जाके स्टोर हो जाएगी। f में जाके स्टोर मतलब एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ f में नम विल बी स्टोर्ड। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, f की वैल्यू एट्रीब्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 4। वाई, क्योंकि रिडक्शन हुआ है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये मैंने जबरदस्त, ये केवल हम लोग ऐसे yes, जा sir. रहे हैं इसलिए नहीं बोल, आप लोग नहीं समझ रहे हो, जबरदस्ती यस सर बोलते हो। नहीं ये सर, हम लोग क्यों, क्या बताइए क्यों 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 हमने एनएम की वैल्यू एफ में स्टोर कर दी? सर क्योंकि बॉटम टू अप जा रहा है ना, नम हाँ टू तो फिर फोर Cost टू new नम, फिर accept. नम टू 4, इसलिए। हाँ नहीं, नम टू 4 क्यों क्यों हमने स्टोर वैल्यू स्टोर करी, ऐसा सर क्या है? प्रोडक्शन था ना हम Clarity लोग के के लिए पास, सब f टेंड्स टू numerical नम। के थ्रू लेना था. यस yes, you are right, because there is a production f tends to num, last production। हमारे पास प्रोडक्शन है, num जो वैल्यू है वो f में रिड्यूस हो रही है, दैट इज व्हाई आई एम स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ num इनटू द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ 4। यू आर राइट, ठीक है। जब हम बॉटम टू अप जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्शन है, लास्ट प्रोडक्शन देखिए क्या है, f टेंड्स टू num, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिखवाया है आप लोगों को। लास्ट प्रोडक्शन देखिए f टेंड्स टू num है, दैट इज व्हाई जो num की वैल्यू है 4 दैट विल बी स्टोर्ड इनटू द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ 4। हो गया, डन डन। अब फिर यस से ऊपर जाइए, अब आप देखिए क्या हो रहा है, T टेंड्स टू F, क्या हमारे पास कोई प्रोडक्शन है? यस T सर, टेंड्स टू t F टेंड्स टू f। यस है, F is reduced to T, so this 4 value will stored in this also। is this point clear? यस किस तरह से आपकी वैल्यू ऊपर जा रही है आप देखिएगा। अब फिर से ऊपर जाइए, फिर रिडक्शन करिए, क्या रिडक्शन क्या इज T is being reduced to E, yes, सेकंड यस सर, प्रोडक्शन e टेंड्स टू E t। tends to T। तो अब आपका क्या हुआ, 4 वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, यहाँ पे स्टोर हो गई। क्लियर है पॉइंट? तो मतलब ई यहाँ पर इसमें ई का जो एट्रीब्यूट वैल्यू है व्हाट इज होल्डिंग, इट इज होल्डिंग द वैल्यू 4। अब चलिए स्कैनिंग करते जाइए, क्या कोई रिडक्शन हुआ अभी तक? कोई रिडक्शन नहीं हुआ। ई इज नॉट रिड्यूस टू ई %, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब आप ये मत कहिएगा कि सर देखिए ई टेंड्स टू यहाँ पे हो गया, अभी नहीं हुआ, अभी हम लोग टॉप टू डाउन जा रहे हैं, बॉटम अप नहीं जा रहे हैं। कोई रिडक्शन नहीं, नो रिडक्शन नो रिडक्शन नो रिडक्शन नो रिडक्शन नो रिडक्शन नो रिडक्शन नो, यस रिडक्शन इज देयर, एफ टेंड्स टू नम, तो नम की वैल्यू है 8, 8 की वैल्यू इधर आ जाएगी, यस और नो? Yes, sir. यस। अब यहाँ पर आ जाइए, फिर अब देखिए f इज रिड्यूस टू t, अगेन दिस वैल्यू 8 वैल्यू कम हियर, डन। अगेन करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, सिमिलरली व्हाट विल हैपन, this 5 value num 5 value and num is reduced to f, so 5 value will come here। अब जाइए ऐसे जाइए 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 जाइए, यहाँ जाके देखिए क्या हुआ, समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे t टेंड्स टू t एट द रेट ऑफ f, क्या ऐसा कोई प्रोडक्शन हमारे पास है? Yes, sir. T tends to T at the rate of. है। तो इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है, 8 एम्पर्स 8 एट द रेट ऑफ 5, मतलब एट द रेट ऑफ क्या है, माइनस है। Minus. वाई माइनस है, बिकॉज वी आर हैविंग द सिमेंटिक रूल माइनस। तो 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे 3 लिख दें। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो सवाल सर ये खत्म। वाला दोबारा बता दीजिए, 8 माइनस f% था। ये देखो, देखो यहाँ पे ये पॉइंट, ये बात तो आप लोग मानोगे कि इसके पास 8 वैल्यू है और इसके पास 5 वैल्यू है, ये बात यस मानते हो नहीं मानते हो? यस सर, यस। When we are going like this and we have reached here, then what we have realized, this, we have realized e this, is just a equals to minute, t ampersand f। यस सर। yes, we have realized this, that t at the rate of f, t at the rate of f is reduced to t। ये देखिए हो रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है? यस ये समझ में आ रहा है ये पॉइंट? अब यहाँ पे यस देखिए t के पास कौन सी वैल्यू है, 8 है, % का मतलब होता है माइनस, f के पास कौन सी वैल्यू है, 5, then what is happening, 8 minus 5 is 3, so that is 3 value will be stored here। I hope this point is clear to all। ये पॉइंट क्लियर है? यस। ठीक है, हाँ। अब आ जाओ यहाँ पर,
अब देखिए फिर ऊपर जाओगे, ऊपर जाने पे क्या हुआ, ई टेंड्स टू, ये देखिए ये हुआ, फिर से एक रिडक्शन हुआ, हम इस सिचुएशन में आ गए। क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्शन है? यस, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको एक रिडक्शन हुआ, ई एट ई एम्परसेंट टी इज रिड्यूस टू कैपिटल ई, सो ई की वैल्यू क्या है 4, टी की वैल्यू क्या है 3, एम्परसेंट का मतलब क्या है 2, multiplication, so this is 12, so it will become 12. Is it clear to all? Yes. अब आ जाइए, देखिए ये भी रिड्यूस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो सब चल रहा है, यहाँ भी पासिंग चल रही, कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। num is reduced to t, so straight away this 7 will be stored over here, this is 7, so this is also done, passing, scanning, passing, just again f num is reduced to f, this is a production, last production, so this is 3 value, so 3 value will be stored in the attribute value of f, so this is also done. So अब देखिए यहाँ पे आ गए, ये क्या हो गया, एक रिडक्शन हुआ यहाँ पर, ये वाला रिडक्शन हुआ, t tends to t at the rate of f, तो t की वैल्यू क्या थी 7, f की वैल्यू क्या थी 3, तो क्या हो गया 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 4, डन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो डन। फाइनली व्हाट इज हैपनिंग, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए, यहाँ पे हो रहा है आपका, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हो रहा है आपका e टेंड्स टू e एम्परसेंट t, ये e क्या है, यहाँ 12 है, एम्परसेंट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और t का मतलब यहाँ 4 वैल्यू है, ये 4 है, तो 48 हो गया, 48, so finally what is the final answer 48, यहाँ पे आपका 48 एट द स्टार्ट सिंबल इज स्टोर्ड, तो ये हो गया 48। क्लियर है पॉइंट ये स्टूडेंट्स, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक ठीक है, तो आप लोगों को मैं सवाल, बहुत सारे ऐसे सवाल दूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे, थोड़ा देख लेते हैं इसको, इसको थोड़ा जूम आउट करें, दिखाई देगा आप लोगों को, बताइएगा जरा मुझे। अरे यार ये क्या है, जूम आउट करता हूँ उसको, दिखाई दे रहा है Yes, sir. इजी? हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा सिस्टम पे बैठिए सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे लास्ट टॉपिक है विच इज टाइप्स ऑफ एसडीटी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसडीटी। ओके, so we will see there are two types of SDT. First is L attributed SDT and second is, sorry, first is S attributed and second is L attributed. First of all, we will understand the difference between these two types of attributes, SDT types. Okay. What is S attributed attribute? First point, it is based on the synthesized attribute. Okay, while L attributed SDT are based on both synthesized and inherited attribute. What is this inherited attributes means? मतलब जो इनहेरिट होना चाहिए वो पेरेंट से होना चाहिए या फिर लेफ्ट सिबलिंग से होना चाहिए, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू दैट पॉइंट एज वेल, व्हाट इज दिस लेफ्ट सिबलिंग, राइट सिबलिंग, वो क्या होता है, बिल्कुल परेशान हो तो वो भी बताते हैं, बट फिलहाल के लिए याद कर लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसडीटी, फर्स्ट इज एस एट्रीब्यूटेड, सेकंड इज एल एट्रीब्यूटेड। द एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी is based on synthesized attribute and L attributed SDT is based on both synthesized and inherited attributes. Okay, one point, जो inherited attributes का मतलब ये होता है कि parent से inherit होना चाहिए और left sibling से inherit होना चाहिए, ये पॉइंट याद कर लो बस, ठीक है। दूसरा सेकंड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज दैट दिस एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी यूजेस बॉटम अप पासिंग and L attributed SDT uses top-down passing. Second important point. Third important point is the semantic rules. All the rules which you used to write on the right-hand side of the production rules, these semantic rules will always be written at the rightmost position of the right-hand side. जैसा हम लोग लिखते हैं, right side में लिखते हैं, तो here also in S attributed SDT, the semantic rules will be written on the rightmost position in right hand side. While if we talk about the L attributed SDT, then these semantic rules
will be written anywhere in the right side. Anywhere in the right side का मतलब समझते हो? जैसे A tends to X Y Z W है, S एट्रीब्यूटेड होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? अगर S एट्रीब्यूटेड होगा तो यहाँ पे लिखेंगे सीमेंटिक रूल्स. बट इफ इट इज L एट्रीब्यूटेड देन यू कैन राइट द पार्सिंग रूल हियर इन बिटवीन ऑल्सो. बस राइट हैंड साइड में होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे 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 भी हो सकता है, जहाँ आप चाहें वहां लिखिए, बस इट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके. So now you have to, अब यहाँ पे what point will be hitting to you right now is, sir, what is this synthesized? Because now you understand what is S attributed, the difference between S and L. Now the point which you have to understand is what is this synthesized attribute and what is this inherited attribute. ठीक है? यहाँ पे मैंने इसको समझाने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है और बहुत अच्छा ये एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, लेकिन इसको और बेहतर ढंग से अगर आपको समझना है तो इसको ऐसे समझ लो. If there is a production rule that is expanding A tends to X, Y, Z, W, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ठीक है, ये है. अब देखिए सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट का मतलब होता है पेरेंट टेकिंग वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड. पेरेंट टेकिंग वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड. ये पेरेंट इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड. समझ में आई बात? बात समझ में आई तो ये कि किस तरह से? synthesized का मतलब होता है. हाँ, ये सिंथेसाइज्ड होता है जब जब चाइल्ड के पास कोई वैल्यू हो, चाइल्ड के पास कोई वैल्यू हो और वो वैल्यू पेरेंट के पास जा रही हो. ठीक है? और इसको समझने का, याद करने की जरूरत नहीं है. आप लोग सोच रहे हो यार याद कर लें. मुझे एक बात बताओ, हम लोगों को अपने माँ बाप से क्या मिलता है? अपने माँ बाप से इनहेरिट ही तो करते हैं. जब इनहेरिट करते हैं तो क्या होता है? माँ बाप की, पेरेंट्स की वैल्यू चाइल्ड में आती है. सिंथेसाइज्ड क्या है? जस्ट उसका रिवर्स, चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट में जा रही है. तो याद करने की जरूरत नहीं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इनहेरिट और मैंने सिंथेसाइज दो बताए हैं. इनहेरिट का मतलब आप जानते हैं, हमारे माँ बाप से हमारे अंदर फीचर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें, हमारी आदतें उनकी आती हैं, सब चीजें हम लोग के आती हैं, हम इनहेरिट करते हैं. मतलब जो पेरेंट की वैल्यूज हैं, जो पेरेंट की वैल्यूज हैं वो चाइल्ड में आ रही है. आप देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इनहेरिट में क्या लिखा हुआ है? चाइल्ड टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम पेरेंट. ठीक है? और सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है. बिल्कुल याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, याद हो गया होगा आप लोगों को. दैट पेरेंट इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम द चाइल्ड. मैंने यहाँ पे देखिए वो भी बनाया हुआ है एरो. जो चाइल्ड है ये चाइल्ड है, चाइल्ड इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड, सॉरी, पेरेंट इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम. ये एरो का मतलब है ये वैल्यू जो है इधर जा रही है, मतलब पेरेंट वैल्यू ले रहा है. ठीक है? बहुत कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हैं लोग, इसलिए ध्यान रखिएगा. ये वैल्यू इधर जा रही है मतलब पेरेंट वैल्यू ले रहा है. पेरेंट इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड, दिस इज सिंथेसाइज. एट इनहेरिट क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है. लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट है इनहेरिट को समझने के लिए. पहला पॉइंट ये है कि चाइल्ड टेकिंग वैल्यू फ्रॉम पेरेंट, ये तो आप जानते हो. चाइल्ड मतलब ये चाइल्ड, दिस इज, दे आर टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम पेरेंट, ये तो आप जानते हो. ठीक है? लाइक दिस, child is taking value from parent. देखिए मैंने बनाया हुआ है, this is inherit. Also there is one more point also, that child also takes value from the sibling. Sibling क्या है? जैसे ये है आपका A tends to X, Y, Z, W. जैसे if you talk about this, इसके siblings क्या हो गए? X, Y और W. ठीक है? X, Y और W. तो यहाँ वाला डायग्राम इसको समझिए जरा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये चाइल्ड टेकिंग वैल्यू फ्रॉम पेरेंट, चाइल्ड इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम पेरेंट, ये तो समझ में आ गया. और नाउ चाइल्ड इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम सिबलिंग्स, दिस इज आल्सो इनहेरिटेड. तो क्या मतलब हुआ इसका? चाइल्ड इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम द सिबलिंग्स, मतलब ये चाइल्ड है, चाइल्ड है, ये अपने, ये किससे वैल्यू ले रहा है? सिबलिंग्स ले रहा है. मतलब Y से वैल्यू ले रहा है, मतलब X से वैल्यू ले रहा है, मतलब W से वैल्यू ले रहा है. बात समझ में आई सब लोगों को? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना? Yes sir. यस सर. हाँ सर. अब देखो यहाँ पे, अब देखो L एट्रीब्यूटेड एसडीटी की जरा डेफिनेशन पे जाओ. इट इज बेस्ड ऑन द बोथ सिंथेसाइज्ड एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट. बट आई हैव रिटन व्हाट? इनहेरिटेड का मतलब है वहां पे पेरेंट और लेफ्ट सिबलिंग. मतलब जो L एट्रीब्यूटेड सॉरी,
जो एल एट्रीब्यूटेड एसडीटीज होते हैं उसमें जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट होता है वो पेरेंट से तो वैल्यू लेता है लेकिन राइट सिबलिंग से वैल्यू नहीं लेता है, वो केवल लेफ्ट सिबलिंग से वैल्यू लेता है। ये डेफिनेशन बहुत याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट सिबलिंग इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की स्ट्रेट डेफिनेशन यहाँ पे फॉलो नहीं होती है, क्योंकि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि वो लेफ्ट से भी सिबलिंग से भी वैल्यू ले, राइट सिबलिंग से भी वैल्यू ले। लेकिन एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी में क्या होता है, वो पेरेंट से तो वैल्यू लेता है लेकिन वो केवल लेफ्ट एट्रीब्यूट से लेफ्ट सिबलिंग से वैल्यू लेता है, राइट सिबलिंग से वैल्यू नहीं लेता है। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इन एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी द चाइल्ड टेक्स वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट सिबलिंग और पेरेंट। देखिए यहाँ से वैल्यू ले रहा है, ए से वैल्यू ले रहा है, सब लोग ले रहे हैं। जेड जो है, मैं जेड की बात कर रहा हूँ, स्मॉल जेड की बात कर रहा हूँ। स्मॉल जेड इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम ए। ये पॉइंट समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर। ए अब एक्शन देखिए लेफ्ट सिबलिंग से वैल्यू ले रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है ये वैल्यू ले रहा है, मैंने एरो बनाया हुआ ऐसा, ये वैल्यू भी ले रहा है। और क्या वो ये वैल्यू ले रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड में है, लेफ्ट सिबलिंग नहीं है, राइट साइड में है। ठीक है, तो ये सवाल भी आपका डन हो गया। ये आप लोगों को क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को समझ में सब आ गया होगा। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली क्या है सिस्टम इतना ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है जो हम लोग एक बार लगा के इसको प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे। और ये सवाल है आपका, जस्ट लेट मी चेंज कलर। ठीक है, ये देखिए सवाल सब लोग देख लीजिए। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने गलत टाइप कर दिया है, इस क्वेश्चन को सब लोग सही कर लें, नोट्स में सही कर लीजिएगा क्योंकि मैंने पीडीएफ बना दी है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, नोट्स में सब लोग सही कर लीजिएगा, मैंने पीडीएफ बना दी है, पीडीएफ में इनकरेक्ट हो गया है। ये A टेंड्स टू LM है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? देवांश, श्रद्धा, Yes. कौशिकी, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, देवांश, कौशिकी, श्रद्धा, समझ में आया? यस सर। आप लोग ये इस पॉइंट को जरा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दीजिएगा कि जो नोट्स हैं उसमें जो लास्ट पेज है उसमें जो प्रोडक्शन रूल लिखा हुआ है L टेंड्स टू LM, दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज A, एक्चुअली A टेंड्स टू LM। मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बता दीजिए क्योंकि कई स्टूडेंट शायद सुन ना रहे हो अभी। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सवाल। बहुत ही देखिए अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है लेकिन बड़ा कंफ्यूजिव है क्योंकि इतना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। सीमेंटिक रूल्स को अगर तुम लोग देखो, जस्ट ये सीमेंटिक रूल्स को देखो तो पहली नजर में तो समझ नहीं आता ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन ये है, A टेंड्स टू LM। इसके अंदर तीन बातें लिखी हुई हैं, तीन सीमेंटिक रूल्स लिखे हुए हैं। 1 सेमीकोलन से सेपरेट करना है, लिखिए 2 3, 3 हो गया। अब हमको चेक करना है कि whether the first one is attributed SDT or not and second one is L attributed SDT or not, हमारा ये क्वेश्चन है। तो आप तो आंसर देख सकते हो, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों ही नहीं है, ना ही पहला वाला S attributed SDT और दूसरा वाला L attributed SDT। तो क्यों नहीं, इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा आप लोग से ये क्या लिखा है, ये सब क्या, ये एक तरह का फंक्शन है लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब जानते हो क्या? इसका मतलब ये है कि एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ A इज स्टोर्ड इनटू द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ L। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इसका मतलब समझते हो ये क्या है? इसका मतलब है A की वैल्यू L में जा रही है। ये तो क्या है? साइज तो नहीं हो गया। इनहेरिटेंस। वेरी गुड, इनहेरिटेड। क्यों? पेरेंट की वैल्यू जा रही है भाई बच्चे में, तो वो तो इनहेरिट हो गया। तो ये इनहेरिट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनहेरिट। ये पॉइंट समझ में आया सब लोगों को? यस सर। यस ठीक है, टाइम कम है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। L की एट्रीब्यूट वैल्यू इज गोइंग टू द M, मतलब L की वैल्यू M में जा रही है। जरा फिर से इसको लिख देते हैं यहाँ पे, लेफ्ट L की वैल्यू M में जा रही है। क्या ये इनहेरिट है? हाँ है, Yes, sir. लेफ्ट सिबलिंग से हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है? इनहेरिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनहेरिट लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ M इज बीइंग स्टोर्ड इनटू द A। इसका मतलब क्या हुआ, बताइए क्या है ये? Synthesized. M की A M में।
m की वैल्यू a में जा रही है, मतलब पेरेंट इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड, पेरेंट वैल्यू ले रहा है, मतलब सिंथेसाइज्ड हो गया ये, ठीक है, हो गया सिंथेसाइज्ड। अब मुझे ये बताइए जो फर्स्ट वन है क्या वो एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी है? नो सर, No, No. because S attributed Synthesized. SDT is only based on synthesized. Is this point clear? Yes. मैं यहाँ पे Yes, completely इसको नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वीडियो में मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज नॉट S attributed STD. दिस इज नॉट, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, क्या जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो L attributed SDT है? Yes, sir. yes sir, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में, 12 बज गया है, खत्म करते हैं इस टॉपिक को। देखिए क्या है, A टेंड्स टू QR, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को सही कर लेना वरना परेशान हो जाओगे। L टेंड्स टू LM लिखा हुआ है, ठीक है। आज मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पे। तो हाँ, तो इसको देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, 3 प्रोडक्शंस हैं हमारे पास, सॉरी 3 सीमेंटिक रूल्स हैं हमारे पास। पहला सीमेंटिक रूल क्या कह रहा है, बस ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, जहां डॉट वाला है बस उस पर ध्यान दो। ए की वैल्यू आर में जा रही है, ए की वैल्यू आर में जा रही है, ये क्या है, चाइल्ड वैल्यू ले रहा है पेरेंट से, तो इनहेरिट हो गया कि नहीं हो गया, करेक्ट। Yes. अब बताओ आर की वैल्यू कहाँ जा रही है, क्यू में जा रही है, ए टेंड्स टू क्यू आर, आर की वैल्यू क्यू में जा रही है, क्या हो गया, ये भी इनहेरिट हो गया। चाइल्ड की वैल्यू, सॉरी चाइल्ड जो है अपने सिबलिंग से वैल्यू ले रहा है, ये भी इनहेरिट हो गया, बिल्कुल सही। नेबर मत बोलो, सिबलिंग बोलो यहाँ पे, Yes. ठीक है। अब ये तीसरा देखो क्या बोल रहा है, ए टेंड्स टू क्यू आर है हमारा, क्यू की वैल्यू ए में जा रही है, क्यू की वैल्यू ए में जा रही है, तो मतलब ये क्या हो गया, पेरेंट इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम द चाइल्ड, तो ये सिंथेसाइज हो गया, तो यहाँ पे मैंने सिंथेसाइज। तो मुझे ये बताइए क्या ये हमारा एल एट्रीब्यूटेड हो गया? No, sir. no sir, Left नहीं हुआ, sibling क्यों से नहीं ले हुआ रहा बताओ। है, Left right sibling child से से नहीं दे रहा है. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। मैंने क्या बोला कि R की जो वैल्यू है दैट इज बीइंग स्टोर्ड बाय द Q, मतलब यहाँ देखिए Q जो है वैल्यू ले रहा है, किससे ले रहा है, अरे भाई ये तो राइट वाले सिबलिंग से ले रहा है, राइट वाले सिबलिंग से इसको नहीं लेना है, इसको तो लेफ्ट वाले सिबलिंग से लेना है। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. clear है सर। ठीक है, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो जो आज की क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होती है, और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है आप लोगों को। इससे ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ एसडीटी इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सब लोग पढ़िए, देखिए अच्छे से, और इस टॉपिक को अच्छे से देखिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके नोट्स आज सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वेबसाइट पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहीं से नोट्स आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू थैंक यू सर। बाय।